Most welcome to the Awakened Citizen Program Year 1 Module 1 Session 11. In today's session, we will explore two of our physical possibilities. Part A, expressing myself, and in part B, engaging with culture and society. In part A, the physical possibility we have is expressing myself. In Unit 1, let's explore our possibility of expressing ourselves. Here is the exploration 1. What are some of the creative things do you like to do? So here are some clues. Do you like singing or dancing? Do you like acting and drama? Do you like any musical instrument? Here's some another clues. Do you like drawing, painting, craft work? Do you like cooking new things? Do you like stitching, knitting and embroidery? Some more clues. Do you like writing stories, essay, poetry? Do you like computer art? Do you like giving speeches? And do you like taking photographs? So these are all ways in which we express ourselves. Through dance, through music, through art, through speeches, through acting, through cooking, through photography, through writing and craft, etc. तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं. So here are some pictures you can see here. Meet some people whose profession it is to express themselves. First here actors, Deepika Padukone, Aamir Khan. Singers and musicians, Shreya Ghoshal, A.R. Rahman. Writers, Geeta Mehta. Dancers, Birju Maharaj, Prabhu Deva. Photographers, Iqbal Mohammed. Sculptures, सांखो चौधरी और ये आपके पपेटियर्स हैं रामदास पाध्य. आर्टिस्ट M.F. हुसैन. तो ये सब ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को किसी भी अपने द्वारा की हुई क्रिएटिव थिंग्स द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा है. Like them, we too can develop our possibility of expressing ourselves to any extent we choose. In Unit 2, we are exploring what happened to us when we express ourselves. कि जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तब क्या होता है. See the exploration second. Which of our infinite qualities and capacities are awakened when we express ourselves? By going deeper into any one particular area of expression like music, dance, storytelling, etc. When I express myself, I awaken these possibilities. Number 1 is my talent and develop it. The pursuit of excellence, my capacity to express my idea and feelings. When I express myself, I awaken my talent and develop it. So here you can see the picture of Sonu Nigam, one of the India's most popular singer, known for his expressive voice. Sonu Nigam began developing his talent for singing at the young age of 4. When he began singing with his father, Agam Kumar Nigam, for wedding, parties, stage shows, etc., he moved to Mumbai with his father at the age of 19 to sing for Bollywood. He was trained by classical singer Ustad Gautam Mustafa Khan for the last 36 years and he has been practicing singing regularly. He listens to music from different countries to learn from them. He tries taking up tough music and complex songs so that he is forced to improve his singing skill. और हम बहुत ज़्यादा वेल फैमिलियर हैं इस आर्टिस्ट से. बहुत सारे सॉन्ग्स और गाने ऐसे हैं जो उनके बहुत पॉपुलर हैं और हमने सुने हैं. यानी अगर हमारे अंदर टैलेंट है और हम उसे एक्सप्रेस करना जानते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं. And here is the next possibility. When I express myself,
I awaken pursuit of excellence. So here is the Kamal Haasan. आप इन्हें भी बहुत अच्छे से जानते हैं. An all-around actor, director, screenwriter, songwriter. Kamal Haasan says that acting is an art that one has to constantly improve. Whenever he takes up a role in a movie, he studies his character carefully and does detailed research on it so that he can play it perfectly. While acting, he takes great care to make sure every expression and action is perfect. As a director, he makes sure that the costumes, sets, dialogue, lyrics, etc. are perfect to get the effect he is imagining. He makes use of modern technology and innovates the movie's making process. इसीलिए अगर इनकी कोई भी आप मूवी देखें तो वो उस करेक्टर में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और उससे पता चलता है इनके एक्सीलेंस का, यानी किसी भी चीज़ को वो पूरे परफेक्शन तरीके से करने की कोशिश करते हैं. When I express myself, I awaken my capacity to express my ideas and feelings. यानी मैं लोगों को दिखा सकता हूँ मेरे विचार क्या हैं, मैं क्या सोचता हूँ, उसके बारे में मैं सबको बता सकता हूँ. R.K. Narayan, best known for his stories about the fictional town of Malgudi days. आपने बहुत सुना, उनकी बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी हैं जो बहुत ही एक्सप्रेसिव और इम्प्रेसिव हैं, जो इम्प्रेस कर पाती हैं हमें और बहुत ही इमोशनल स्टोरीज़ हैं. Writing books and stories were for him a means to bring out how deeply he felt about his own life and Indian society. In his stories, R.K. Narayan loved to have characters who are very real that his readers could relate to. His books Swami and Friends include incidents from his own childhood. The character Krishna in his book, The English Teacher, showed his own feelings after his wife's death. So इन्होंने कहानियों में अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को डाला तो वो हर एक कॉमन आदमी से अपने आप को रिलेट कर पाए. तो पार्ट ए के यूनिट 1 और यूनिट 2 में तो हमने सीखा कि किस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी पॉसिबिलिटीज़ को, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. और उसी तरह से फिर हमने सीखा कि होता क्या है जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो वही कि हम सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं. अब पार्ट बी में हम आते हैं. द नेक्स्ट फिजिकल पॉसिबिलिटी वी हैव इज़ एंगेजिंग विद कल्चर एंड सोसाइटी. सो हियर इन यूनिट 1, what does it mean to engage with culture and society? So let's explore this through some case examples. So children, suppose you visited Japan for the first time. What all would you do to explore and learn about the place and its people? So here are some clues. Japanese temple, अगर आप वहाँ देखते हैं तो Japanese delicacy and Japanese customs और उनकी ceremonies, Japanese painting, Japanese language, Japanese warrior. सो कल्पना कीजिए अगर बाई चांस आपको वाकई में मौका मिलता है जापान के अलग अलग जगहों पे जाने का, तो आप जापानी मंदिर है जो इंगाणु जी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. वहाँ का जो बहुत ही फेमस एक पकवान है सुशी, आप उसके बारे में जानेंगे. वहाँ के रीति रिवाज, उसका जो एक चाय समारोह होता है उसके बारे में आप जानेंगे. और जापानी चित्रकला है उकियो ए, उसके विषय में आप जानेंगे. वहाँ की भाषा के बारे में जानेंगे. और जापानीज़ योद्धा हैं समुराई, तो उनके विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी. सो थिंक अबाउट दैट. इफ़ आई ट्रैवल टू जापान तो व्हाट हैपन, कि जापानी धर्म के बारे में अधिक जानने के लिए मैं वहाँ पर उनके मंदिरों में जाऊँगा या जाऊँगी. ठीक है. और उनकी जो पारंपरिक भोजन है उसे मैं एक बार चखूँगी, ज़रूर खाऊँगी, उसे खाने की कोशिश करूँगी. उनके जितने भी स्थानीय रीति रिवाज हैं उन्हें समझने का प्रयास करूँगी, उनमें भाग लूँगी, पार्टिसिपेट करूँगी.
उनकी विशिष्ट कलाओं को सराहने के लिए उनकी स्थानीय कला जो भी होंगी, जो उनकी लोकल जो भी प्रदर्शनीज वगैरह जो लगेंगी, मैं उनमें जाने का कम से कम प्रयास करूँगी। उनसे बात करने और लिखने का तरीका सीखूंगी, क्योंकि उनकी भाषा मुझे नहीं आती होगी, तो मैं कोशिश करूंगी उन लोगों से इंटरेक्ट कैसे करूं, तो मैं उनकी भाषा सीखने की अभी प्रयास करूंगी। उनके अनुकरणीय जो भी लोग होंगे, जो पीपल होंगे, उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली मान्यताओं के बारे में भी जानूंगी, यानी कि जो उनकी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे उनके वहाँ के योद्धा हैं, समुराय, तो मैं उनके इस कल्चर के विषय में भी जानना चाहूँगी। और इसी तरह से यदि मैं पहली बार नागालैंड जाती हूँ या आप लोग जाते हैं, तो वहाँ की जगहों व लोगों के बारे में अधिक जानने और सीखने के लिए भी आप क्या क्या करेंगे। तो वहाँ पर एक शाही महल है, हम उसके बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। नागाओं की पारंपरिक वेशभूषा, जब वहाँ पर आप लोगों को उन्हें पहने देखेंगे तो आप उनके विषय में उनसे ज़रूर पूछेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे उनसे। वहाँ का हॉर्नबिल महोत्सव होता है एक, जब अगर उस महोत्सव के समय होंगे या आप लोगों से सुनेंगे तो उसके बारे में आप ज़रूर पता लगाएंगे कि ये कब से और कैसे आरंभ हुआ, क्यों मनाया जाता है। नागालैंड की बांस से बनी शिल्प कृतियाँ होती हैं, तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कैसे बनती हैं। सांस्कृतिक गांव होते हैं वहाँ के टुफेमा, तो उसके बारे में भी आप जानकारियाँ इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और नागाओं की धारणाएं मनुष्यों और पशुओं में गहरा संबंध, वो मानते हैं इस बात को कि जो ह्यूमन बीइंग हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है। तो आप भी जानना चाहेंगे वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनकी ऐसी विचारधारा क्यों है। तो अगर वाकई में मुझे नागालैंड की यात्रा करने का मौका मिलता है तो उनका जो भी स्थानीय इतिहास होगा उसके जानने के लिए मैं शाही महल में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा। उनकी पारंपरिक वेशभूषाएं पहनकर ज़रूर देखूंगी कि इन्हें क्या फील होता है, महसूस होता है जब इन्हें पहनते हैं, और ये मुझ पर कैसी लगती है। उनके सांस्कृतिक जो भी महोत्सव होते हैं, जैसे हॉर्नबिल महोत्सव है, तो उसमें हिस्सा अवश्य लूँगी। हिस्सा लेने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि हाँ ये है क्या। और नागालैंड की बांस से बनी जो शिल्प कृतियाँ होंगी उन्हें मैं देखने के लिए जाऊंगी, उनकी जो भी पारंपरिक शिल्प कृतियाँ होंगी उनके विषय में जानूंगी। उनके गांव में रहकर उनकी जीवन शैली को जानने का प्रयास करूंगी, तभी मुझे पता चलेगा ना। जैसे उनका टुफेमा था, तो वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का उनका जो भी आवासीय जो होते हैं उनके, वो किस तरह से बने होते हैं, किस तरह से वो अपना जीवन यापन वहाँ करते हैं। उनकी मान्यताएं जानने के लिए मैं उनकी पौराणिक कथाएं सुनूंगी। क्या मान्यता कि वो पशुओं में और मनुष्यों में जो गहरा संबंध बताते हैं, तो मैं जानने का प्रयास करूंगी और वो मुझे उनकी पौराणिक कथाओं से ये पता चलेगा। तो देखा आपने, जब हम ये सब करते हैं, यानी जब हम एक जगह से दूसरी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की संस्कृति कल्चर हमसे पूरी तरह से भिन्न होता है, तो हम उसकी संस्कृति व समाज से जुड़ना कहते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि हम उनके बारे में जब जानते हैं तो हम उस कल्चर को पहचानना सीखते हैं। मंदिर, महलों व सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण दूसरे स्थानों पर जाकर हम उसके विषय में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं। उनका भोजन चखना, उनकी वेशभूषा के तरीके देखना, उसे अनुभव करना, उसे पहनकर उसके विषय में और ज़्यादा अधिक जानकारियाँ ग्रहण करना, उनके रिवाजों और समारोहों में भाग लेना और उसमें फील करना कि कैसा लगता है उसमें पार्टिसिपेट करके और क्यों वो उसे मनाते हैं, वो सब जानकारियाँ ग्रहण करना। उनके स्थानीय नृत्य, नाटक, संगीत, कला व शिल्प को देखना और उसके विषय में भी उनसे जानकारियाँ एकत्र करना। उनकी भाषा व जीवन शैली के बारे में सीखना, क्योंकि तभी हम उनकी बातों को समझ पाएंगे, अपने विचार उन तक पहुँचा पाएंगे और उनके विचार हम अच्छे से जान पाएंगे। उनकी धारणाओं व मान्यताओं के बारे में जानना, यानी उनकी जो भी कथा, कहानियाँ, जो भी उनकी लोक कथाएँ प्रसिद्ध हैं, उन्हें जानकर ही हम उनकी धारणाओं और मान्यताओं के बारे में जान सकते हैं। We learnt in Unit 1 what does it mean to engage with culture and society, and in Unit 2 we are exploring our possibilities of engaging with culture and society, कि संस्कृति व समाज से जुड़ना, उसकी संभावना की खोज करना, इसका क्या प्रभाव होता है। इस एक्सप्लोरेशन में हम देखेंगे कि हम में से कई पहले से ही संस्कृति व समाज से जुड़ चुके हैं,
जुड़ चुके होंगे, यानी कि हम कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ के सोसाइटी और कल्चर के बारे में हम पहले से ही जान चुके होंगे। तो आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स पर हम ज़रा सी एक क्विक दृष्टि डालते हैं कि यहाँ पर अब ये देखिए कुछ क्लूज़ हैं आपके लिए कि क्या आपने किसी नई जगह की यात्रा की है और उसके बारे में बहुत कुछ सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप आपस में इस बारे में डिस्कस कीजिए। जिस जगह के बारे में आप जानते हैं वो आप दूसरों तक उसे पहुंचा सकते हैं। क्या आपने कोई नई भाषा सीखी है? तो अगर आपने कोई न्यू लैंग्वेज एक्सप्लोर की है, उसे सीखा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप उसके कुछ ऐसे शब्दों को दूसरों के साथ बोलकर आप उन्हें भी सिखा सकते हैं। क्या आपने कोई विशेष सांस्कृतिक त्योहारों या समारोह में भाग लिया है, या फिर भविष्य में आप किसी भी समारोह में या इनमें से कुछ भी आप करना चाहते हैं? कुछ और क्लूज़ आपको यहाँ दिए हुए हैं कि आपने किसी और संस्कृति की फिल्में देखी हैं, जैसे गीत आदि सुने हैं। मतलब अगर मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं हिंदी की फिल्में तो देखती हूँ, हिंदी के सॉन्ग सुनती हूँ, लेकिन उसके अलावा इंग्लिश या आप कहो मलयालम, मेरी भाषा नहीं है मलयालम वैसे, या इसमें से और कोई, अगर मैं कश्मीरी लैंग्वेज में कुछ देखना चाहती हूँ तो सुनना चाहती हूँ, वहाँ के गीत पसंद करती हूँ, मैं कोई बंगाली सॉन्ग पसंद करती हूँ, तो जब मैं उसे सुनूंगी और मैं उसके हिंदी शब्दों के बारे में जानूंगी तो मैं उसकी संस्कृति से जुड़ूंगी और मुझे पता चलेगा कि मैं जिन शब्दों को हिंदी में बोलती हूँ उसे बंगाली में या गुजराती में या और दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है। क्या आपने कभी दूसरी संस्कृति के लोगों से मित्रता की है? क्योंकि अगर मित्रता की है तो आपको वहाँ के विषय में बहुत कुछ जानने का अवसर मिला होगा। क्या आपने कभी नई संस्कृति के बारे में गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है? कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको, अगर मैं स्टेट्स में ही कहूँ तो अलग अलग राज्य की अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, तो अगर आप उनकी लोक कथाएँ पढ़ते हैं, उनकी कुछ और पौराणिक कथाएँ पढ़ते हैं तो आपको उनके विषय में जानकारियाँ ज़रूर मिलती हैं, लोक कथाओं से सबसे ज़्यादा मिलती हैं। या आप भविष्य में इनमें से कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं? तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनका पेशा ही ये है, आप कहें कि उनका प्रोफेशन ही ये है कि वो संस्कृति और समाज से ही सिर्फ जुड़ने में अपना करियर देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके ट्रैवल डिज़ाइनर्स हैं कि ये जिम केन व माइकल्स मर्फी हैं, जो यात्रियों को स्थानीय लोगों के साथ जुड़ने में, उनकी परंपराओं में भाग लेने में सहायता करते हैं। यानी कि जो घूमने के लिए आते हैं उन्हें लोग, तो वो जस्ट ऐसा गाइड उनकी तरह से काम करते हैं। यहाँ दूसरा उदाहरण देखिए कि ये पिको अय्यर, जो कई जगहों की यात्रा करते हैं और अपने लेखन द्वारा अपने अनुभव बांटते हैं। तो देखिए, फर्स्ट तो क्या था कि वो दूसरे जो आए हुए लोगों को होते हैं वहाँ की संस्कृति से अवगत कराते हैं। यहाँ आपने दूसरा देखा कि जो यात्रा पत्रिका और टीवी शो के जो लेखक और फोटोग्राफर होते हैं वो जगह जगह घूमकर फिर अपनी उन बातों को और दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं, यानी कि जिस जिस स्थानों की उन्होंने यात्राएँ की हैं वहाँ की संस्कृति के, उसके कल्चर से उन सबको रूबरू कराते हैं। जैसे कुछ भाषा वैज्ञानिक होते हैं, तो इस उदाहरण में देखिए कि प्रोफेसर विंता अभी जो नई जगहों के लोगों के बीच में रही हैं और उन्होंने देशी भाषाएं सीखी हैं, तो उन भाषाओं के विषय में वो दूसरों को भी बताती हैं। पुरातत्वविद भी होते हैं। इस उदाहरण में आप देखिए बीबी लाल, जो प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, जहाँ खुदाई वुदाई होती है, जो अवशेष मिलते हैं उनको अध्ययन करते हैं। वह कल्पना करते हैं कि उनकी संस्कृति कैसी रही होगी पहले, या जिस समय के ये फॉसिल्स मिले हैं वहाँ की तब का कल्चर कैसा था। तो जिस हद तक हम चाहें हम भी अपनी संस्कृति व समाज से जुड़ने की संभावना को विकसित कर सकते हैं। यूनिट 2 में हमने सीखा कि किस तरह से हम एंगेज हो सकते हैं किसी भी दूसरे की कल्चर और सोसाइटी के साथ। अब हम यूनिट 3 पर आ रहे हैं। हियर एक्सप्लोरिंग व्हाट हैपन्स टू अस व्हेन वी एंगेज विद कल्चर एंड सोसाइटी, यानी कि जब हम संस्कृति और समाज से जुड़ते हैं तो होता क्या है। चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। इस एक्सप्लोरेशन में आप देखिए कि जब मैं संस्कृति या समाज से जुड़ती हूँ तो मतलब कौन सी क्षमता को मैं विकसित करती हूँ, कौन सी पॉसिबिलिटी को मैं जागृत करती हूँ। जैसे सबसे पहला आप यहाँ पर देखें, कुछ क्लूज़ हैं यहाँ पर। विभिन्न प्रकार के परिधान पहन कर देखना, कि जब भी मैं कहीं जाऊँगी, मान लीजिए कि मैं बंगाल में जा रही हूँ, मान लीजिए मैं गुजरात में जा रही हूँ, या मैं और कहीं घूमने जा रही हूँ, तो मैं वहाँ के जो भी परिधान होंगे पहनकर ज़रूर देखूँगी। जैसे साड़ी पहनकर चलना कठिन होता है, तो दिवाली का जो उत्सव होने के कारण मैं साड़ी पहनना चाहती थी। ऐसी हैरियट
एक अमेरिकी पर्यटक थी। उसे लगता था कि शायद कठिन होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की वहाँ के कल्चर को अपनाने की और पहन कर देखा। भीड़ भाड़ वाले स्थानों के प्रति अपनी नापसंदगी पर काबू पाना। जैसे कुछ लोगों को नहीं पसंद होता कि वो ऐसे लोगों के बीच में जाएं, बहुत ज़्यादा जो क्राउडी प्लेसेस हैं वहाँ पर जाएं वो। तो मैं साधारणतः भीड़ से भरे स्थानों से दूर रहती हूँ, किंतु जब मैं राजस्थान गई तो वहाँ के भीड़ भाड़ वाले रंगीन बाज़ारों में खरीदारी करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। ठीक है, तो होता है कई बार कि हमारा जो परसेप्शन होता है वो बदल जाता है कहीं पर जाने के बाद। ऐसे देखिए, नई अनुभूति की इच्छा रखना कि जब हम कुछ नए अनुभव, कुछ नई फीलिंग्स अपनी क्रिएट करना चाहते हैं। ये एन है यहाँ पर, ये एक फ्रेंच ट्रैवलर हैं जिन्होंने बोला कि मैं चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल पहली बार कर रही हूँ, चॉपस्टिक का, और इस तरह खाना बहुत ही असुविधाजनक है, लेकिन यह एक नया अनुभव है, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। क्योंकि हर कोई चॉपस्टिक से नहीं खा पाता। एक बैम्बू की 2 पतली सी स्टिक होती हैं, आपको नूडल्स और राइस उससे पकड़ कर खाना होता है, और वो बहुत मतलब एक तरह से उससे स्लिप कर जाते हैं, हर कोई इससे नहीं खा पाता। लेकिन उसके लिए वो नया अनुभव है, तो वो कह रही है मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, कोशिश करूँगी मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। इसी तरह से संगीत कला आदि में रुचि विकसित करना चाहती हैं अगर, तो वो कहती हैं कि मैंने सोचा था कि शास्त्रीय संगीत बहुत उबाऊ होगा, परंतु जब मैंने अपने मित्र के साथ शास्त्रीय संगीत के समारोह में भाग लिया तब मैंने जाना कि यह नया संगीत कितना आनंददायक है। मैंने कहा ना कि परसेप्शंस तो हम किसी के बारे में बना लेते हैं, लेकिन जब हमारा साक्षात्कार उससे होता है, जब हमारा इंटरेक्शन उस जगह से, उस कल्चर से, उस चीज़ से होता है, तो शायद हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ और कुछ और क्लूज़ आपको दिए हैं, जैसे जर्मन लोगों से गुणवत्ता के बारे में सीखना। तो हमने कहा ना कि अगर जर्मन में घूमने जाते हैं तो जर्मन में BMW कार की फैक्ट्री के दौरे के कारण मैंने भी जर्मन के लोगों की तरह अपने कार्य की गुणवत्ता पर गर्व करना सीखा, क्योंकि वहाँ के लोग जो अपना काम करते हैं उसमें पूरे परफेक्ट होते हैं और एक तरह से वो प्राउड फील करते हैं इस बात पर। ऐसे चाइनीज़ लोगों से खान पान और उसकी जीवन शैली के बारे में सीखना। मैंने एक टीवी शो में चाइनीज़ लोगों को अपने भोजन के साथ हरी चाय पीते हुए देखा था, तो मैंने जाना कि जो हरी चाय यानी कि जो ग्रीन टी होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। तो हर किसी के कल्चर में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं जिसे अपनाना कोई भी बुराई नहीं है। इस उदाहरण में देखिए, जैसे महिला कह रही है कि वायलिन चेलो पर भारतीय संगीत बजाना सीखना। मैंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के तकनीकी एवं संस्कृति को सीखा और मैं अपने संगीत में इसका उपयोग भी करती हूँ। यानी उन्होंने पहले उसके बारे में सुना होगा, जब वो वहाँ गई उसे देखा, जब उन्होंने सीखा तो उनका इंटरेस्ट अपने आप ही उसमें जाग गया। मंगोलिया के लोगों से अनुकूलन करना सीखना, एडेप्टेशन सीखना एनवायरनमेंट में। मेरे मित्र जिसने मंगोलिया का दौरा किया, मुझे खाना बदोश के बारे में पता चला। ऐसे लोग जो एक जगह टिक कर नहीं रहते, वे किस प्रकार अपने आप को किसी भी मौसम के अनुकूल बना लेते हैं। मैं उनकी ऐसी ताकत और शक्ति से बहुत ही प्रेरित हूँ। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं कि दूसरों की संस्कृति के तौर तरीकों के प्रति सम्मान भी हमारे अंदर आता है जब उन्हें देखते हैं। एक यूरोपियन हैरान है कि उसके चीनी मित्रों को बाहर जाने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा की आवश्यकता होती है, फिर भी वह इसके लिए उनका आदर करती है। दूसरों के रिवाजों के प्रति सम्मान। जब हम इधर उधर घूमते फिरते हैं, दूसरों के कल्चर से रूबरू होते हैं, तो हमें उनके प्रति सम्मान करना भी आता है। एक अमेरिकन मानती है कि उसकी अरबी मित्र को वेशभूषा के विषय में कई पाबंदियां हैं, जबकि वह अपने घर में अधिक स्वतंत्रता का आनंद उठाती है, लेकिन फिर भी वो उसका सम्मान करती है। मतलब उसे लगता है कि मैं तो कुछ भी पहन सकती हूँ, लेकिन मेरी एक अरबी मित्र है, वो हर एक परिधान को नहीं पहन सकती। दूसरों की सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल होना। तो ये यूरोपियन और अरबी मित्रों के साथ परंपरागत अरबी भोजन में शामिल होते हैं। ये उनके खान पान के तरीक़ों का अनुसरण करते हैं। अब हम किसी ऐसी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं या दोस्ती करते हैं जो हमारे कल्चर की नहीं होती, तो अगर हम उनसे मेल मिलाप करते हैं, उनके यहाँ पर खान पान खाते हैं, तो उनका हमें एक भिन्न कल्चर देखने को मिलता है, अलग तरीके का खान पान भी मिलता है। नए तौर तरीक़ों के प्रति उदार होना। एक कैनेडियन रेड इंडियन तरीके से एक पवित्र कॉटनवुड के वृक्ष के नीचे विवाह करता है।
तो ये मतलब ये ना कि उनके तरीके हैं, तो हमें उसके प्रति भी लचीलापन लाना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होता तो ये जो कर रहे हैं वो गलत है। और यहाँ कुछ और आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, जैसे जीने के नए तौर तरीक़ों का आदी होना। भारत में पढ़ रही स्पेनिश छात्रा भीड़ से भरी लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की आदी हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे माहौल में, जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसके ही अनुकूलन हम अपना लेते हैं, यानी कि अडेप्टिव हो जाते हैं। अपरिचित खान पान के अनुकूल होना। तुर्की में रह रहे एक ऑस्ट्रेलिया नियमित रूप से स्थानीय तुर्की खाना खाने की आदी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस स्थान पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उन्हें वहीं के जैसा खान पान मिलेगा। अपने पहनावे के ढंग में बदलाव लाना। लंदन में रह रही एक ईरानी लड़की एक नए स्थान के अनुसार अपनी वेशभूषा में परिवर्तन लाती है, किंतु साथ ही अपने सिर को ढकने की परंपरा का सम्मान भी करती है। यानी अगर वो दूसरी जगह गई है, वहाँ के कल्चर को वो अपना रही है, अपनाएगी भी, लेकिन अगर उसकी अपनी परंपरा है तो वो ऐसे नहीं कि उसे इग्नोर करेगी या उसके प्रति वो रेस्पेक्टफुल नहीं रहेगी। नई जगहों से परिचित होना। फ्रांस में छुट्टियां बिताने के लिए आए हुए एक मैक्सिकन यात्री मैक्सिकन के रहन सहन के विपरीत वहाँ के तेज़ शहरी जीवन के अनुकूलन में आ जाते हैं। तो जब मैं नई संस्कृति और समाज से जुड़ती हूँ तो मैं अपने अंदर कौन सी क्षमता को विकसित करती हूँ, जागृत करती हूँ कि अपने पसंद या नापसंद के प्रति खुला व लचीला होने की क्षमता को जागृत करती हूँ। कि ज़रूरी नहीं है मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, नहीं लगती है, लेकिन वहाँ का अगर कल्चर है तो वो मुझे अपनाना चाहिए। नई संस्कृति व समाज से सीखने की क्षमता रखती हूँ। अगर वहाँ के कल्चर में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो मैं उन्हें सीखना ज़रूर चाहूँगी। और सोचने व जीने के नए तरीक़ों के प्रति उदार होने व सम्मान करने की क्षमता, क्योंकि जो मेरा कल्चर है ज़रूरी नहीं सामने वाले का कल्चर भी वो होगा, लेकिन अगर मैं अपने कल्चर का सम्मान करती हूँ तो मैं दूसरे के कल्चर के प्रति भी उतनी ही उदार रहूँगी और उसका सम्मान करूँगी। अपरिचित आदतों व जीवन शैली को स्वीकार करने व उनके अनुकूलन होने की क्षमता, यानी कि वहाँ का पहनावा हो गया, खान पान हो गया, वहाँ का मौसम वेदर हो गया, तो अगर वो मेरे क्षेत्र से अनुकूलन में नहीं था लेकिन वहाँ मैं रह रही हूँ तो मुझे उन्हीं के अनुसार वहाँ के अडेप्टिव बनना पड़ेगा। So here is the summary of this session. In today's session, we explore two of our possibilities: expressing myself and engaging with culture and society. So in expressing myself, when I express myself, I awaken my talent and develop it, my capacity to express my ideas and feelings, the pursuit of excellence. And the second possibility, engaging with the culture and society. When I engage with the culture and society, I awaken my capacity to become more flexible and open in my likes and dislikes, my respect and openness to new ways of thinking and living, my capacity to learn from new cultures and society, my capacity to accept and adjust to unfamiliar habits and lifestyles. And this is the end of this session, session 11. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे सेशंस अटेंड करके अच्छा लग रहा होगा और आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए और अपने आप भी इन सारे सेशंस को सुनकर जो भी बदलाव आप महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में।